Welcome, Libra. Welcome to my reading. This is a reading about your love and relationship sector, work and money sector, which also includes that is career, job, business, finances, same thing. And the third sector is your health sector. Okay. So first sector is love and relationship. Now, relationship could be any important relationship which is playing a role, vital role now in your life, in current situations of your life. Okay, that could be your lover, that could be your spouse, member of a family, कलीग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ भी, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है जो अभी आपके जिंदगी में एक एनर्जेटिकली एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है. ओके, नेसेसरी नहीं है कि सिर्फ लव रिलेशनशिप मतलब लवर्स ही हो. ओके, या फिर स्पाउस ही हो. Okay, now the second category describes of, you can very well understand, work, that is job, business, career, and money and finances. Okay, and the third category is all about your health sector. लेकिन सबसे पहले I'll check what is the highest influential energy currently affecting your life in general, चाहे कोई भी sector हो. अब Libra, this is a general reading, collective reading, so certain things might resonate, certain things might not resonate. कुछ energies हो सकते हैं, कुछ group of Libras के साथ resonate करे. जैसे मैं example दे रही हूँ, ये जो कार्ड मैं अभी पिकअप करूँगी, चूज करूँगी, इसका जो energy निकलेगा, that might, for some Libras that might resonate with work life, for some Libras that might resonate with love life, and for some Libras that might resonate with हेल्थ सेक्टर. ओके, तो कुछ भी हो सकता है बिकॉज सबका एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट अलग अलग है. सो फाइन, आई होप यू अंडरस्टूड. यूनिवर्स, प्लीज शो द हाईएस्ट इन्फ्लुएंशियल एनर्जी वर्किंग in Libra's life now, currently, in current situations. Highest influential energy. What is the highest influential energy working in a major way in Libra's current life situations? Let's see, Libra. किसी चीज के लिए आप बहुत उम्मीद लेके बैठे हैं, लिब्रा. वेरी वेरी होपफुल, और rather trying to be hopeful. वेरी वेरी अबंडेंस रिलेटेड कुछ हो सकता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है. किसी चीज को आप फुलफिल करना चाहते हैं, एज इफ इसके लिए आप होपफुल हैं कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये चीज पूरा हो जाए, मेरी ये मन्नत पूरी हो जाए. लिब्रा, थिंग्स लाइक दैट. And you're very positive. You're quite positive with the star card, because ये star card आया है आपके conscious mind के हिसाब से. So you're very very positive. दोनों कार्ड ही काफी positive है. Conscious mind, subconscious mind, दोनों कार्ड ही काफी पॉजिटिव है. अब हो सकता है किसी के लिए ये हेल्थ सेक्टर हो, किसी के लिए ये वर्क लाइफ सेक्टर हो, किसी के लिए ये किसी के लिए ये लव लाइफ सेक्टर हो. Libra to Libra, obviously it will vary. And not only that, you're also healing from something, and healing and simultaneously hoping that कि सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए. एक रिन्यूअल सा फेज ऐसे चल रहा है आपके लाइफ में, एक रिन्यूअल का एनर्जी चल रहा है. स्टार कार्ड फिर से कहीं ना कहीं उस बारे में या उस मुद्दे को लेके एक होप जगाता है. रिन्यूअल ऑफ होप कि तब नहीं हुआ था, अब शायद हो जाए, या फिर आगे जाके शायद हो जाए. इस तरीके का थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, या फिर आप खुद रख रहे, आपके सबकॉन्शियस में भी वैसा चल रहा है. यू आर ट्राइंग टू गिव बर्थ टू समथिंग इन अ न्यू वे, जो पहले मुमकिन नहीं था, अब आपको लग रहा है
and you're very very positive in your thoughts. आपको लग रहा है कि आगे अभी हो जाएगा, बस अभी हो जाएगा, तब नहीं हुआ था लेकिन अब हो जाएगा. And that's how you're keeping your thoughts in the current situation. You're trusting the divine, you're trusting your dreams, you're being very very inspired, very inspired. And your inspiration is guiding you. You know, Libra, your inspiration is guiding you. Very good. Guiding you. Very good. Stay connected to the universe. Stay connected to the divine. Meditation कीजिए. तब और अच्छा आप डिवाइन से, अपने इनर सेल्फ से, अपने हायर सेल्फ से, सोल से, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाएंगे. मेडिटेशन इज द गेटवे. नो, उन सब एनर्जीज को डाउनलोड करने का गेटवे है. Stay aligned. That's what you need to do. You need to stay aligned with those positive energies, with hope and with faith as you create a brighter future. And you will create a brighter future क्योंकि आपके subconscious mind में भी वही ख्यालात चल रहे हैं. You know, you're fully prepared. You're entering a time of creativity and growth जो पहले मुमकिन नहीं था, अब वो जाके possible होगा. And you're very very hopeful and positive. एक उम्मीद सा जग गया है आपके अंदर, you know, दोबारा से. पहले शायद नहीं हुआ, आप मुरझा गए थे, लेकिन अभी आप नहीं हैं. स्टेट चेंज हो रहा है, मेंटल स्टेट चेंज हो रहा है. Now that could be anything in your love life, in your work and money life, or in your health life. एक एक लिब्रास के साथ एक एक सेक्टर कनेक्ट करेगा. अब डिटेल्स में देखते हैं. This was the overall energy, the highest influential energy, जैसा मैंने कहा रीडिंग के पहले, शफल के पहले. तो अब देखते हैं एक एक करके कैटेगरिकली कि फर्स्ट I'll check out your लव एंड रिलेशनशिप सेक्टर. उसमें क्या एनर्जीज निकलते हैं, क्या है मैसेजेस देखते हैं. और सबसे लास्ट में एकदम विल चेक आउट द गाइडेंस. प्लीज शो द कार्ड यूनिवर्स फॉर लिब्रास love and relationship area. What's going on there? What's the energy going on there in Libra's love and relationship area? Libra's love and relationship area, universe. Please show the card for Libra's love and relationship area. Libra's love and relationship area. Okay. Next shuffle is for your work and money life, Libra. The next card will be for your work and money life. That is job, career, business, finances. इस बारे में होगा ये कार्ड. देखते हैं वहाँ पे एनर्जी क्या है, कौन सा कार्ड निकलता है उस फील्ड में, उस सेक्टर में. लेट्स सी. Okay, now the third area is of your health sector. Please show the card for Libra's health sector, universe. Card for Libra's health sector. What's the energy going on there for Libra's health sector? Okay. Libra, so to say, पहले डिस्कस करते हैं आपका वर्क एंड एक्सट्रीमली सॉरी. पहले डिस्कस करते हैं आपका लव एंड रिलेशनशिप सेक्टर. ओके, लव एंड रिलेशनशिप सेक्टर में देखा जा रहा है कि कभी कहीं कुछ रुका हुआ है. यू नो, समथिंग इज इन अ हैंगिंग पोजिशन, आगे नहीं बढ़ रहा है. या फिर ऐसा भी हो सकता है आप पर्पसली रुके हुए हैं या उस चीज को रोक दिए हैं. एंड
you're trying to think a lot about that, and धीरे धीरे you're trying to change the perspective regarding this matter, that is your love and relationship sector. You know, you're trying to change your perspective, you're trying to see the things or that particular person pertaining to your love and relationship sector एक नए एंगल से, नए व्यू पॉइंट से आप सोचने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, you know. कहीं कुछ फ्यूचर को लेके आप प्लान कर रहे इस बारे में लिब्रा, बट प्रेजेंटली स्टक है, प्रेजेंटली एज इफ रिश्ते में कहीं कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है. जो लोग शादी करना चाहते हैं शायद उनके लिए ऐसा हो सकता है. लिब्रास, कुछ लिब्रास लाइक यू नो, थिंग्स आर नॉट गोइंग फॉरवर्ड, इट्स इन अ स्टक कंडीशन. And at the same time, you will be changing, because of this, you will be changing your perspective, you will be changing your viewpoint. आपके दिमाग में इस तरह का ख्यालात आएंगे कि नहीं, शायद ऐसा देखते हैं, इस तरीके से इसे सोचते हैं, पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा आपका. तो पर्सपेक्टिव चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उस आइडिया को सेटल करने में माइंड में, यू नो. रिलेशनशिप में कहीं कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है. यू माइट फील द नीड टू सैक्रिफाइस योर रिलेशनशिप लिब्रा, ऐसा भी हो सकता है. सो बेसिकली इट्स अ वेटिंग पीरियड दैट यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ लिब्रा, इन पर्टिकुलरली इन योर लव एंड रिलेशनशिप सेक्टर. और इसी वेटिंग पीरियड में इंसान जब थोड़ा शांत हो जाता है, वेट करने लगता है, हॉल्ट मोशन जब हॉल्ट पोजीशन में रहता है, तभी इंसान के दिमाग में यू नो नए नए विचार आते हैं, नए नए ख्यालात आते हैं. दिमाग जब बिजी रहता है किसी चीज में, तब दूसरे तरीके का ख्यालात नहीं आ सकता है, क्योंकि तब आप ऑलरेडी एक काम में इन्वॉल्व हैं, उसी काम के रिलेटेड आपका vision बोलिए, thoughts बोलिए, you will have. But when your mind is calmer comparatively, you know, then you will certainly have the ability to think other things, to change your perspective, so to say. When this card is concerned, the card of a hanged man. So this was all about your, ऐसा भी हो सकता है आपको sacrifice करना पड़े अपने लव लाइफ को, या फिर कोई एक रिलेशनशिप को जो कि बहुत वाइटल है शायद आपकी जिंदगी में. यू नो, यू माइट फील द नीड टू सैक्रिफाइस एंड लेट गो दैट पर्सन फ्रॉम योर लाइफ. कुड बी पॉसिबल फॉर सम लिब्रास. सबके साथ शायद ना हो, और होगा भी नहीं, बिकॉज सबके साथ सबका रीडिंग बर्थ चार्ट, एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट एक जैसा नहीं होगा, सो इट विल वेरी. ओके, मूविंग ऑन टू योर वर्क एंड मनी सेक्टर. ओके, देखते हैं. यहाँ पे इट सीम्स यू आर ट्राइंग टू मेंटेन अ बैलेंस, यू नो, मेंटेन अ बैलेंस. कोई एक से ज्यादा चीज है आपकी जिंदगी में पर्टेनिंग टू योर वर्क एंड मनी लाइफ, पर्टेनिंग टू योर जॉब, करियर, बिजनेस. हो सकता है आप दो जॉब कर रहे, हो सकता है एक जॉब हो, एक बिजनेस हो, ऐसा हो सकता है, यू नो, थिंग्स लाइक दैट. सो यू आर ट्राइंग टू बैलेंस, यू नो, 1 foot in 1 foot out, ऐसा चल रहा है, एंड यू आर नॉट लाइकिंग दैट, यू आर ट्राइंग टू बैलेंस इट. उस सिचुएशन को आप बैलेंस करना चाहते हैं बाय रिमेनिंग काम, बाय रिमेनिंग वेरी वेरी पेशेंट, वेरी पेशेंट. ये पेशेंस ही आपको सक्सेस दिलाएगा इस बारे में, यू नो. सक्सेस विल कम ओनली विथ पेशेंस. हो सकता है आपने इनकम को आप बैलेंस करना चाहते हैं, यू वांट टू बैलेंस योर इनकम. हो सकता है सेविंग्स कम पड़ रहा है,
खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, तो वही चीज़ आप बैलेंस करना चाहते हैं लिब्रा। ऐसा भी हो सकता है कुछ लिब्रास के साथ, ऑब्वियसली इट विल वेरी। बट मार्केटिंग लाइन में या फिर स्टेशनरी रिलेटेड कुछ लाइन हो या फिर पब्लिशिंग रिलेटेड कुछ स्ट्रीम हो, आप उसमें सक्सेसफुल रहेंगे। अगर आप इस तरीके का कोई जॉब रिलेटेड जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो यू विल गेट सक्सेस, with this card or with this energy, so to say. Returns and savings अच्छा ही नजर आ रहा है, लेकिन उसके लिए आपको बैलेंस करना पड़ेगा कि इनकम जितना आ रहा है उस हिसाब से सेविंग्स करे, उस हिसाब से खर्चा करे, स्पेंड करे। तो ये बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तभी जाके आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। Okay, now moving on to your health sector, Libra. हेल्थ में खास कुछ नेगेटिव कुछ नजर नहीं आ रहा। अगर कहीं किसी बारे में इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ ईगो प्रॉब्लम और ईगो क्लैश विथ समवन, किसी के साथ अगर ईगो से कोई वास्ता हो रहा है आपका, तो प्लीज पुट अ चेक ऑन इट, कंट्रोल इट, नहीं तो ये ईगो आपको आपके हेल्थ पे असर करेगा। अदरवाइज अगर ये चेक कर सकते हैं, काम माइंड रख सकते हैं, तो फिर आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। आप हेल्थ वाइज ओवरऑल आपका बेसिकली ठीक रहेगा, लेकिन अगर कहीं ईगो को आगे बढ़ने दे, इंस्टेड ऑफ बीइंग कंपैशनेट एंड काइंड, ईगो को अगर काम करने दे, तो यही आपके बॉडी का, माइंड का उस पर नेगेटिव असर फैलेगा, पड़ेगा, नेगेटिव असर, नेगेटिव एस्पेक्ट पड़ेगा। तो बी वेरी केयरफुल ऑफ योर ईगो, अदरवाइज इट्स अ गुड कार्ड, गुड एनर्जी, पॉजिटिव कार्ड। बी केयरफुल ऑफ हैविंग एनी फीवर or sudden injuries, माइंड को थोड़ा काम रखिए, पैशन को थोड़ा कंट्रोल्ड रखिए, क्योंकि वॉन्ड्स एनर्जी है। वॉन्ड्स एनर्जी इज ऑल अबाउट हॉट हेडेड, पैशनेट, तो इसीलिए माइंड को थोड़ा काम रखिए, ईगो को थोड़ा स्टेबल रखिए, ईगो को आने मत दीजिए। इनफैक्ट द बेस्ट वे इज टू नॉट लेट योर ईगो ओवररूल। काइंड रहिए, कंपैशनेट रहिए, अंडरस्टैंडिंग होइए दूसरों के साथ, तो ईगो को जगह नहीं मिलेगा आने का। एंड दैट्स हाउ यू विल सक्सीड, योर हेल्थ विल बी फाइन, you don't have to worry for your health. Okay, so this was all about the categorical readings. Now the last part would be the universal guidance. देखते हैं यूनिवर्स और क्या कहना चाहता है। Please show one card, universe, for Libra's guidance. What's the guidance card for Libra? What's the overall guidance card for Libra? Overall guidance card for Libra. Rooted and vitality. सुपरफिशियल लेवल में मत रहिए लिब्रा, चाहे कोई भी मैटर हो, कोई भी इशू हो, whether it's love life, whether it's relationship with people, whether it's work or money sector, whether it's your job, career, whether it's your health sector, rooted रहिए।
ग्राउंडेड रहिए, तभी आप स्टेबिलिटी को बरकरार रख पाएंगे. ओनली देन यू विल हैव द एबिलिटी टू मेक एवरीथिंग स्टेबल इनफ. अदरवाइज हिलने लगेगा चीजें, सिचुएशंस डगमग डगमग करेगा बैलेंस. इसीलिए देखिए टेम्परेंस में भी, टेम्परेंस का कार्ड आया है आपके वर्क एंड मनी सेक्टर में. एक पैर आगे, एक पैर पीछे, एक पैर इधर, एक पैर उधर, इस टाइप का बैलेंस नहीं आ रहा है. एंड दैट इज व्हाट इज यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू डू, कि ट्राई टू बैलेंस इट आउट, बिकॉज यू आर नॉट बीइंग एबल टू बैलेंस. सो रूटेड रहेंगे तो ग्राउंडेड रहेंगे, ग्राउंडेड रहेंगे तो बैलेंस्ड रहेंगे, और तभी वाइटलिटी भी मेंटेन रहेगा. आपके माइंड बॉडी स्पिरिट का जो वाइटलिटी है, ग्रोथ है, दैट विल बी मेंटेन्ड इन अ ब्यूटिफुल वे, in a very balanced way. Just like a tree. The example is, see, it's just like a tree, very deeply rooted. It will help you in the process of growth, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में अभी ग्रोथ का बहुत थॉट्स चल रहा है. आपके सबकॉन्शियस में हो सकता है कुछ लिब्रास को वो पता चले, हो सकता है कुछ लिब्रास को वो ड्रीम्स के जरिए पता चले, हो सकता है कुछ लिब्रास को वो अभी पता शायद ना चले. जो लोग सबकॉन्शियस से कनेक्टेड है, थोड़ा स्पिरिचुअल है, उन्हें कनेक्शन अच्छी तरह से इस्टेब्लिश करने का मौका मिलता है, या इट फैसिलिटेट्स, बेसिकली इट फैसिलिटेट्स. You can develop the connection easily with your subconscious mind if you are spiritually inclined. That can come through meditation. So focus on laying the foundation for your personal growth, strengthen your roots, nurture your strengths, and allow yourself to grow into your full potential. Just like a tree, tree embody the process of growth through deep roots and steady expansion. Deeply rooted रहेंगे एकदम. Superficial level में रहेंगे तो गिर जाएंगे, चाहे वो कोई भी मैटर हो. I hope you are understanding my point, Libra. So this is what it is. If you want to take some action in any particular area of your life, क्योंकि हैंगमैन का कार्ड आया है, अभी आप एक्शन लेने का नहीं सोच रहे, अभी फिलहाल आप ब्रेक ले रहे, लेकिन ब्रेक के बाद ब्रेक थ्रू का भी स्टेज आएगा. आपके सबकॉन्शियस में वो स्टेज चल रहा है, या फिर यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहा है कि अब जितना ब्रेक लेना था ले चुके, नाउ यू कैन मूव अहेड. यू नीड टू हैव दैट करेज. मे बी यू आर लैकिंग दैट करेज. Maybe you're having that fear deep down inside because you're living on a superficial level, Libra. That's the main reason. That's the main point. If you're grounded, you will be balanced. You will be stable in your thoughts. ये fear, ये सब काम नहीं करेगा फिर. So you will be able to understand things in a much, much better way. So take the first step, चाहे वो love life हो, चाहे वो work and money हो, चाहे वो health हो, take the first step. Break through your self-imposed limits. आप खुद के ही limits में बंधे हुए हैं अभी, खुद के ही mental thoughts में अभी बंधे हुए हैं, इसीलिए देखिए रुक गया है. Temperance भी रुका हुआ है, हैंगमैन भी रुका हुआ एनर्जी है. तो बढ़िया से बैलेंस करें. ऐसा भी ना हो कि ईगो के चलते या पैशन के चलते, बोल्डनेस के चलते बहुत फास्ट चीजें होने लगे या आप करने लगे. डोंट डू लाइक दैट. डोंट फॉल प्रे टू दैट एनर्जी. इट विल बी हार्मफुल फॉर यू. सो middle ground choose कीजिए. Okay, so I hope you got the point clear enough, Libra. Thank you so much for your time and patience. See you in my next reading.
And yes, of course, you can watch it as a sun sign, moon sign, rising or ascendant sign, and Venus sign, specifically for the love part and love and relationship part. Okay. Okay. Thank you so much, Libra. See you in my next reading. Till then, take care. Bye bye. See you soon.